page number 64. So whatever the programs are there in the page number 64, we will discuss. So now the first one is, see here, practically I will discuss. Wait, no use like this. Now tell me, screen is visible? Yes, sir. Yes. So now the first statement is CLS. Then for loop for x is equal to 1 to 5. Now print x. Print x. Now after that next of x. Next of x. And then what is there? Print. Then next one is print. Print the loop is the loop is the loop is the loop has got over. So this is the first program given in the book. Okay, now we will run this one program. This program we will run. So try to understand what is the output of this program. So here CLS statement means clear the screen. After that for loop started here. From here to these three lines. This is what? One वे ऑफ राइटिंग द लूपिंग स्टेटमेंट, मतलब सेम ही काम मल्टीपल टाइम करना है, उसके लिए हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं. सो सी हियर दिस वन इज द फॉर लूप. सिंटैक्स इज व्हाट? फॉर काउंटर वेरिएबल एंड इनिशियल वैल्यू, देन 2 इज द कीवर्ड एंड 5 इज द वैल्यू फाइनल. सो प्रिंट दिस वन इज व्हाट? स्टेटमेंट, block of statement between this for or next. This statement will execute 5 times. Starting from 1 to 5, it will execute 5 times. Total 5 times it will execute. And here see the value of first time it will execute. Then x value is 1. So print x means 1 will be executed. Okay. Next. Then here the statement is next of x means next value of x is 2. So again print x means print 2. Again next of x means next value is 3. So print 3. Next of x means 4, print 4. Next of x means 5, print 5. After that we will reach to the final position. Final value x में जो है वहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं. तो हम लोग ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट जो लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली. अब हम लोग बाहर आ जाएंगे एंड देन द लूप हैज, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्रिंट द लूप हैज गॉट ओवर. सो in the output, if I will run this program, in the output screen, in the console black screen, we will get 5 times. First it will print 1, then 2, then 3, then 4, then 5. After that the loop has got over. So sixth statement is this one. Next statement is this one. So now I am running this. So here start, click on start. Now see, so the output is 1, 2, 3, 4, 5. After that the loop has got over. The loop has got over. Now tell me, this program is clear to everyone or not? Yes, sir. So in the whiteboard also try to understand this. The program is like this: CLS for x is equal to 1, for x is equal to 1 to 5, then print of x, then next of x, and here is print the loop has got over. So these are the statements I have written. So see here. So these are the statements. This is line number 1. This statement is L1, is line number 1. This one is line number 2. This statement is line number 3. ठीक है ना? Line number 4. Now line number 5. So this whole is collectively one program. See here everyone. ये totally हमारा एक program है. ठीक है ना? अब जो भी program होता है top to bottom execute होता है. Starting from line number 1. So
CLS मीन्स console, clear the screen of the console. अगर console में black screen में कुछ है पहले से पड़ा हुआ उसको clear कर देगा, erase कर देगा. So next statement means second line में क्या है, एक for loop है. So for loop जब भी start होता है तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका ये wait, so this one ये collectively execute होगा. यहाँ से यहाँ ये टोटल एक ब्लॉक है, ठीक है ना, ये एक ब्लॉक है. ये यहाँ से यहाँ टोटल एट ए टाइम एग्जीक्यूट होता है. ये सेकेंड थर्ड फोर्थ. सो लाइन नंबर 2 इज व्हाट, फॉर x इज इक्वल टू 1 to 5. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक वेरिएबल x है जिसमें इनिशियल वैल्यू 1 है और फाइनल वैल्यू 5 है, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ यहाँ से ये जो लूप है 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा. इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5 इट विल एग्जीक्यूट, टोटल 5 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा. सो फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होगा तो x का वैल्यू 1 है. सो फॉर और नेक्स्ट के बीच में क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट है. सो क्या प्रिंट करेगा, x से. x में क्या है, फर्स्ट टाइम में 1 है. सो 1 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे. एवरीवन, सो फर्स्ट टाइम आउटपुट स्क्रीन पे 1 प्रिंट होगा. आफ्टर दैट हियर द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, नेक्स्ट ऑफ x. x में वैल्यू अभी 1 था, अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ऑफ x मींस नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x इज 2. x का वैल्यू 2 आ जाएगा. और फिर हम यहाँ पे वापस, अब देखिए पहले लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हुआ, फिर 3 एग्जीक्यूट हुआ, फिर 4 हुआ. 4 एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग वापस क्या है, वापस हम वहां पे फिर से आ जाएंगे, यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, फॉर के पास. x का वैल्यू अब हमारा नेक्स्ट ऑफ x, मतलब x का वैल्यू अब हमारा 2 हो जाएगा. अगला स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट ऑफ x. x मींस 2 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा. नाउ अगेन द नेक्स्ट ऑफ x. x का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ऑफ x वैल्यू इज व्हाट, 3. सो 3 एंड नाउ फ्रॉम हियर अगेन वी विल बी रीच टू हियर 4. सो x वैल्यू इज 3. अब यहाँ से फिर वापस हम यहाँ पे आएंगे. सो x प्रिंट ऑफ x, x में वैल्यू 3 है, सो प्रिंट 3. 3 विल बी प्रिंटेड हियर. नाउ सी हियर अगेन नेक्स्ट ऑफ x. x का वैल्यू हमारे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ऑफ x मींस 4. वी विल कम बैक टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर. प्रिंट ऑफ x मींस नेक्स्ट टाइम वी विल प्रिंट 4. नाउ नेक्स्ट ऑफ x मींस नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x इज 5. कम टू हियर, सो x इज 5. नाउ हियर अगेन कम लाइन नंबर 3. सो x वैल्यू इज 5. लूप का मतलब क्या होता है, हम लोग घूमेंगे, साइकिल की पहिया जो होता है ना व्हील, उसी में हम लोग रोटेट कर रहे हैं. ये L2 से L4 में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है. अब x का वैल्यू नेक्स्ट ऑफ x, x का वैल्यू 6 हो गया. अब हम लोग यहाँ पे जब वापस आए तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 6 हो गया. लेकिन हम जो है x का वैल्यू मेरे पास 1 to 5 ही हो सकता है, ठीक है ना. तो अब हम कंडीशन फॉल्स हो गया. जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, x का वैल्यू अब 6 हो गया. नेक्स्ट ऑफ x से जब ऊपर है तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा. जैसे ही x का वैल्यू 6 हुआ, हम लोग ये लूप जो है ना L2 से L2 से L4 जो एग्जीक्यूशन हो रहा था अभी, वो खत्म हो गया. अब हम लोग ये टर्मिनेट हो गया, मतलब अब हम लोग लूप में नहीं रहेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे. अब लाइन नंबर 5 अब एग्जीक्यूशन इसका स्टार्ट होगा. लाइन नंबर 5 पे हम आ जाएंगे, ठीक है ना. सो लाइन नंबर 5 पे वापस आ गए, ठीक है. लाइन नंबर 5 क्या है, प्रिंट द लूप हैज गॉट ओवर. सो नाउ द आंसर इज हियर इट विल प्रिंट द लूप हैज गॉट ओवर. सारे लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में. Now see here. So next one is what? X is equal to 1 to 10. So next one, program see here. First of all, I am sharing the screen. Now tell me, the screen is visible or not? Now I am removing the second program. Whatever the second program is given in the book, try to understand here, everyone. So second program is for x is equal to 1 to 10. 1 to, now see CLS. Next one is for x is equal to 1 to 10. 1 to 10. Step value is given. Step 2. Print of x. Next one is what? Next of
next of x. Okay, so these are the statements given in the book. Now if you see here, so x का वैल्यू क्या होगा, बिटवीन 1 to 10 होगा. x का वैल्यू 1 से 10 के बीच में ही होगा, उसके बाहर नहीं जा सकता. ठीक है ना. So the value of x will be between 1 to 10. Initial value is 1, final value is 10, and step value is 2 means increment कितना करेगा. See here, so here the output will be, first time it will be 1, next time it will print 3, next time it will print 5, then 7, then 9. Okay, and then loop will be over. Now see here the output 1 3 5 7 9. समझ में आया? Yes, sir. Now see in here also try to understand how this output is coming. So see, the question is like this: CLS for x is equal to 1 to 10, step value is 2. Next one is print of what? X. Print of x. Next of x, and no statement after this. Now try to understand. So first statement is 1. Line number 1 is here. Line number 1 is this one. This one is what? Line number 2. Line number 2. Line number 3, and this one is line number 4. Now first statement is line number 1. Line number 1 क्या है? Line number 1 is console जो स्टेट आएगा ब्लैक स्क्रीन, उसको क्लियर कर देगा. अगर प्रीवियस कोई आउटपुट उस पर पड़ा रहेगा तो वो क्लियर कर देगा. ठीक है. अब लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो गया. अब नेक्स्ट लाइन मेरा क्या है? लाइन नंबर 2. लाइन नंबर 2 क्या है? फॉर लूप है. तो जब भी फॉर लूप आएगा तो वो साइकिल में रोटेट करेंगे हम लोग. मतलब लाइन नंबर 2 देखिए फॉर लूप है, तो ये फॉर स्टार्ट यहाँ हो रहा है, तो एंड यहाँ पर हो रहा है. नेक्स्ट जहां पर आएगा फॉर और नेक्स्ट जो है ना हमेशा साथ में यूज होता है. तो लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 4 में अब हम लोग रोटेट करते रहेंगे. कब तक करेंगे? अब देखिए इनिशियली हमारे पास x का वैल्यू 1 हो गया. ठीक है. हम लोग x का वैल्यू क्या हो सकता है? x का वैल्यू 1 to 9 हो, 1 to 10 हो सकता है मैक्सिमम. तो इनिशियल फर्स्ट टाइम x का वैल्यू क्या होगा? 1 है. ठीक है. सो x का वैल्यू 1 हुआ. प्रिंट ऑफ x हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट ऑफ x का मतलब स्टेप वैल्यू हमारे, अब यहाँ से नेक्स्ट ऑफ x जो होगा तो वापस हम लोग सी हियर एवरीवन, यहाँ से लाइन नंबर 4 से हम लोग वापस यहाँ पे आ जाएंगे. अब नेक्स्ट ऑफ x जैसे ही होगा तो स्टेप वैल्यू 2 है. यहाँ पे इससे पहले वाले प्रोग्राम में स्टेप वैल्यू मेंशन नहीं था. जब भी स्टेप वैल्यू मेंशन नहीं रहता तो डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 होता है. इंक्रीमेंट होगा प्रीवियस वैल्यू बाय 1. ठीक है ना. अब यहाँ पे तो स्टेप वैल्यू दिया हुआ है, मतलब x का प्रीवियस वैल्यू 1 था, उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 2. नाउ द x वैल्यू विल चेंज टू, दिस x वैल्यू विल बी चेंज टू x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, दैट मींस इट विल बी 3. x का वैल्यू अब 3 हो जाएगा. ठीक है ना. सो यहाँ पर हम लोग का x का वैल्यू 3 हो गया. फिर प्रिंट ऑफ x, तो x हमारा 3 प्रिंट होगा. नेक्स्ट ऑफ x, सो नेक्स्ट ऑफ x मींस वापस हम लोग यहाँ पे जाएंगे. कहाँ पर? Here. From here to again we will go to here. Step value is 2. Now the x value will be incremented by 2. तो फिर से x का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया by 2. Now the x value is 5. अब x का वैल्यू 5 हो गया. प्रिंट ऑफ x, तो x का वैल्यू 5 है, प्रिंट ऑफ x करेंगे तो 5 आएगा. नेक्स्ट ऑफ x, अगेन हम लोग यहाँ से वापस यहाँ पे जाएंगे. तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट ऑफ x, तो x का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा क्योंकि स्टेप वैल्यू 2 है, तो 5 प्लस 2. अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2 मींस 7 हो जाएगा. और प्रिंट ऑफ x, तो प्रिंट ऑफ x मींस 7 विल बी प्रिंटेड हियर. नाउ नेक्स्ट ऑफ x, अगेन हम लोग क्या होगा? यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे यहाँ पर. फिर x का वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 2 होगा, तो x का वैल्यू अब क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 7 प्लस 2 9 हो जाएगा. नाउ प्रिंट ऑफ x, तो x का वैल्यू अब क्या प्रिंट होगा? यहाँ पर 9 प्रिंट होगा. एंड अगेन नेक्स्ट ऑफ x, तो x का वैल्यू स्टेप वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 प्लस 2 दैट इज 11. 9 प्लस 2 दैट इज 11. लेकिन हमारा ये कंडीशन दिया हुआ है कि x का वैल्यू जो है
1 से 10 के बीच में ही हो गया, लेकिन अभी x का वैल्यू क्या हो गया 11 हो गया। जैसे ही x का वैल्यू 11 हो गया, ये हमारा L2 L3 L4 जो साइकिल में घूम रहे थे उससे हम लोग बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये लूप बंद हो गया, ठीक है ना, क्लोज हो गया। लूप में अब जो घूम रहे थे वो खत्म हो गया, मतलब अब हम लोग लाइन नंबर 4 से बाहर आ गए। लाइन नंबर 4 के अलावा भी कोई स्टेटमेंट रहता तो अगले लाइन पे वो जाता, कोई स्टेटमेंट नहीं है, स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। सो आउटपुट इसीलिए 1 3 5 7 9 आएगा। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? यस, समझ में आया कि नहीं? सर आगे सर। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रोग्राम। Now see everyone, the next program, third program. For x is equal to 10, for x is equal to 10 to how many? 10 to 1. Step of -2. Step of -2. Print of x. Print of x. And then next of x. Next of x. Next of x. So here, see here. अब यहां पर क्या है ना, इनिशियल वैल्यू हमारे पास 10 है और फाइनल वैल्यू 1 है। उल्टा, जैसे टेबल हम लोग प्रिंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन द रिवर्स ऑर्डर आल्सो यू कैन प्रिंट 10 9 8 7 लाइक दिस अप टू 1 10 to 1। सो अगर हम लोग लूप रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हैं तो इस केस में हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 10 लिए, इनिशियल वैल्यू हम लोग हाईएस्ट लेंगे और लोवेस्ट वैल्यू फाइनल वैल्यू हो जाएगा। इनिशियल वैल्यू हमारा 10 है, फाइनल वैल्यू 1 है और स्टेप वैल्यू -2 है। सो अब इसका आउटपुट क्या होगा? फर्स्ट टाइम प्रिंट x, तो x में 10 है तो 10 प्रिंट होगा। नेक्स्ट ऑफ x, x का वैल्यू, सो इसका आउटपुट जो आएगा आपके पास 10 8 6 4 2 आएगा। अब कैसे आएगा वो अभी आपको मैं पहले रन करके दिखा रहा हूं और फिर आपको सी हियर 10 8 6 2 6 4 2. So this is the output. Now see how this output is coming. Everyone see. Now the question is this one. The program is for x is equal to 10 to, 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 just wait everyone, x is equal to 10 to